समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। पूरा हफ्ता परमेश्वर ने हमें संभाला है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि इस संकट की घड़ी में भी परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। कारण हम परमेश्वर को धन्यवादित हृदय से धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, आपकी स्तुति और महिमा और सम्मान करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पिता, आज की इस प्रार्थना सभा के लिए तुझे ऊंचा उठाता हूँ प्रभु परमेश्वर। मंडे से लेकर संडे तक आपने हम सबों की सहायता की और इस समय सदेवली कलीसिया और मसीह कलीसिया, बड़ा विक्रमगढ़ की कलीसिया के लोग जो प्रभु हमारे साथ जुड़ रहे प्रभु परमेश्वर, उन सबों के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना सभा को तो आशीषित करना प्रभु परमेश्वर। जो स्तुति आराधना धन्यवाद प्रार्थना तुझे अर्पण करेंगे परमेश्वर पिता, तू कबूल कर हमारे बीच में प्रभु परमेश्वर। लोग जो अपने अपने घर में बैठे हैं उन सबों को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा छू ले। तेरे लोगों के घरों में तेरी पवित्र उपस्थिति प्रभु, तेरे लोगों के संग आ जाए मेरे परमेश्वर, और तेरे लोगों को शांति मिले। जो भी अपनी जिंदगी में परेशान है, दुख में है प्रभु परमेश्वर, चिंता से प्रभु परमेश्वर करे हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबों को आज प्रभु तू शांति दे, चिंता मुक्त कर प्रभु, भय मुक्त कर। और परमेश्वर जो भी भाई बहन बीमार है, परेशान है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को प्रभु तो दूर कर। ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना सभा की शुरू से लेकर अंत तक हमारी सहायता करो और प्रभु पिता हालेलुया, गाने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तेरा सामर्थ अभिषेक को मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। सब लोग कहे आमीन। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஹல்லேலூயா। கர்த்தருடைய நாமத்து பரிசுத்தம் உண்டாவதாக। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस समय पे भी परमेश्वर की आराधना में हम सबको लेके आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर को स्तुति करते हुए कुछ तमिल गीत गाएंगे। हालेलुया। सब लोग ताली बजा के कोई गीत गाएंगे। எல்லோரும் உள்ளத்தில் ஆழ்த்திருந்து தேவ சமூகத்திலே நம்மளை நாமே தாழ்த்தி ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடுவோம். முதலாவதாக ஜெபத்தோட்ட ஜெயங்கதில் பாடல் சாங் நம்பர் 108, ஜெபத்தோட்ட ஜெயங்கீதங்கள் 108வது பாடல். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். கைகளை தட்டி ஆரவாரமாக படிப்போம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அபிஷேகித்து அழைப்பவரே, ஆறுதல் நாயகனே, அபிஷேகித்து அழைப்பவரே, ஆறுதல் நாயகனே, ஐயா ஆறுதல் நாயகனே, ஐயா எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன், உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்.
தாகம் அமர்ந்திருந்து ஓயாமல் முத்தம் செய்தே உந்தன் தாகம் அமர்ந்திருந்து ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறே ஐயா ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறே உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் என்னை விட்டு ஈடுபடாத நல்ல பங்கு நீதானையா என்னை விட்டு ஈடுபடாத நல்ல பங்கு நீதானையா நல்ல பங்கு நீதானையா உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் கொள்ளி கூடவே வைத்து கொள்ளி வருகையில் இணைத்துக் கொள்ளி கூடவே வைத்துக் கொள்ளி ஐயா கூடவே வைத்துக் கொள்ளி உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உலையான சேற்றினின்று தூக்கி எடுத்தவரே உலையான சேற்றினின்று தூக்கி எடுத்தவரே ஐயா தூக்கி எடுத்தவரே உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன் உம் விருப்பம் செய்திடுவேன் உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன் உம் விருப்பம் செய்திடுவேன் ஐயா உம் விருப்பம் செய்திடுவேன் உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் அல்லேலூயா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो और एक तमिल गीत गाएंगे எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் ஜெபத்தோட்ட ஜெயங்கள் ஜெபத்தோட்ட ஜெயங்கள் 270வது பாடல் சாங் நம்பர் 270 ஜெபத்தோட்ட ஜெயங்கீதங்கள் 270வது பாடல் விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யார் உண்டு ஆமென் அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் நமக்கு அல்லேலூயா இம்மட்டுமா இந்த வாரம் முழுவதும் கடந்த வாரம் முழுவதும் கண்மணி போல காத்து இந்த வேளையிலே நம்ம பரிசுத்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள வந்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக ராஜா ஸ்தோத்திரம் தமிழ் பாடலை பாடுவோம் சாங் நம்பர் 270 விண்ணிலும் மண்ணிலும் நமக்கு யார் உண்டு தவிர எனக்கு யாருண்டு இந்த மண்ணுலகில் விருப்பமே உண்டு விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு இந்த மண்ணுலகில் உம்மை எண்ணி வேற விருப்பமே
அப்பா உன் வலக்கரம் பிடித்து தாங்குகிறேன். நன்றி ஐயா நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. நன்றி ஐயா நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை எண்ணி வேற விருப்பமேதுண்டு? விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை எண்ணி வேற விருப்பமேதுண்டு? உம் சித்தம் போல் என்னை நீ நடத்துகிறீர். முடிவிலே என்னை மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர். உம் சித்தம் போல் என்னை நீ நடத்துகிறீர். முடிவிலே என்னை மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர். நன்றி ஐயா நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. நன்றி ஐயா நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை எண்ணி வேற விருப்பமே உண்டு? விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை எண்ணி வேற விருப்பமே உண்டு? ஜன்னத்தில் நீதான் ஐயா எனக்குரிய அன்பும் என்றென்றும் நீதான் ஐயா. என் உள்ளத்தில் நலனே நீதான் ஐயா எனக்குரிய பங்கும் என்றென்றும் நீதான் ஐயா. நன்றி ஐயா நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. நன்றி ஐயா நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை அன்றி வேற விருப்பமே உண்டு? விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை அன்றி வேற விருப்பமே உண்டு? அடைக்கலமாய் கொண்டுள்ளேன் உம்மோடு தான் வாழ்வது என் பாக்கியம். உம்மை தானே நான் அடைக்கலமாய் கொண்டுள்ளேன் உம்மோடு தான் வாழ்வது என் பாக்கியம். நன்றி ஐயா நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. நன்றி ஐயா நாள் முழுதும் நல்லவரே வல்லவரே. விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை எண்ணி வேற விருப்பமே உண்டு? விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு? இந்த மண்ணுலகில் உம்மை எண்ணி வேற விருப்பமே உண்டு? செயலாற்றி மகிழ்கின்றேன் உம் சித்தம் செய்ய ஆற்றல் தருகின்றேன். எனக்குள்ளே நீர் செயலாற்றி மகிழ்கின்றேன் உம் சித்தம் செய்ய ஆற்றல் தருகின்றேன். நன்றி ஐயா நாள் முழுதும்
எல்லாம் எதுவுண்டு விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை தவிர எனக்கு யாருண்டு இந்த மண்ணுலகில் உம்மை அன்றி வேற விருப்பம் எதுவுண்டு. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் பரிசுத்தமாவதாக. அல்லேலூயா. ஜீசஸ். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். आखिर में एक तमिल गीत गाएंगे. हालेलुया. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். हालेलुया. ஆராதனை ஜெபத்தோட்ட ஜெயங்களில் 289வது பாடல், சாங் நம்பர் 289. ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள்ல அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதனை பாடல். எல்லோரும் கைகளை தட்டி உள்ளத்தில் ஆழ்த்திருந்து நாம் ஜெபிப்போமாக. அல்லேலூயா. அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலனோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே இதுவரையில் உதவினீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கோருவேன் ஆராதனை 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 எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கோருவேன் ஆராதனை 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 யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கோருவேன் ஆராதனை 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 yes Lord hallelujah ஆராதனை 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 அன்பு கோருவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கோருவேன்
हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना में भी तमिल गीत अच्छी तरह से गाने के लिए परमेश्वर ने स्तुति किया, मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। सारे स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी हिंदी गीत गाएंगे। बस माना Okay. Ready? Praise the Lord. हालेलुया। जिसके हाथ है अपने हाथ प्रभु के लिए ऊपर उठाए। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Okay. Yes. आइए हम हिंदी स्तुति में जाएंगे और नए पुस्तक में गीत नंबर 6 और 6 न्यू बुक। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। ब्रदर राज बोलिए। ब्रदर राज, अभी कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे वो व्यू करना है। ओके ओके ओके, तीन लोग का वीडियो नहीं चालू है। ठीक है ओके। मंगेश, कृपावती, अनु राठौड़, इनके वीडियो नहीं चालू है। उनको चालू करना पड़ेगा। या अनु राठौड़ एक चालू हो गया। ओके। आत्मा से भर दे प्रभु। आमीन। रेडी? आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुलाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुलाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू देता है तू मतलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मतलसी, सब कुछ तेरे पास है, तू देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी,
जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, ओ जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया, great Jesus, glory, hosanna, hallelujah, धन्यवाद पवित्र पिता, हालेलुया, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। नए पुस्तक में न्यू बुक सॉन्ग नंबर 9, गीत नंबर 9, आनंद मनाओ यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। रेडी, गीत नंबर, आनंद मनाओ यीशु जी के मंदिर में आनंद मनाओ। रेडी, आनंद मनाओ यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, ओ आनंद मनाओ यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ, यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ, यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ, तो बोलो यीशु सबका स्वामी तुम आनंद मनाओ, इस दुनिया का मालिक है तुम आनंद मनाओ, इस दुनिया का मालिक है तो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, तो मिलकर गाएंगे आनंद मनाओ यीशु के मंदिर लोगों आनंद मनाओ, सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ,
सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ, तो बोलो सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ, क्रूस पे सारा दाम चुकाया आनंद मनाओ, क्रूस पे सारा दाम चुकाया आनंद मनाओ, ओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु वचन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ, सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ, सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ, तो बोलो सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ, बोलो दूर भगाता आनंद मनाओ, दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ, दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ, ओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, ओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु में तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ, सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ, ओ सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ, तो बोलो सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ, क्रूस पे सारा दाम चुकाया आनंद मनाओ, क्रूस पे सारा दाम चुकाया आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु वचन के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु में तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ, सब बीमारी दूर भगाता मनाओ, तो सारे सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ, तो बोलो सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ, दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ, दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ, बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु वचन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु वचन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु वचन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु वचन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ, यीशु वचन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ, यीशु वचन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ। समय हम अपनी आंखें बंद करें और आराधना में जाएंगे। सारे परिवार जितने भी इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी पत्नी बच्चों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करो। परमेश्वर ने हमें परिवार करके चुना है। परमेश्वर को परिवार सहित आराधना करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें। प्रभु का आशीष अगर आपके परिवार पर चाहिए तो अपने परिवार को लेकर बैठो। आपके बच्चे शैतान के नहीं हैं, आपका परिवार शैतान का परिवार नहीं है, आपका परिवार परमेश्वर पिता का, जिंदा खुदा का परिवार है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अपने सहित जितने विश्वासी है उनको कहता हूँ, जो विश्वास करके उनके लिए अपने परिवार सहित प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। परिवार सहित परमेश्वर को एक साथ धन्यवाद देना परमेश्वर को भाता है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, अकेले को नहीं बनाया, परिवार बनाया। हालेलुया। इसलिए परिवार सहित परमेश्वर को स्तुति आराधना करना मुझको अच्छा लगता है। और जो परिवार परमेश्वर की स्तुति आराधना इस तरह से करता है, प्रभु का आशीष उन पर बना रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे जगत को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तू दिन दिखाता है, ढाल बनकर तेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। उठने मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तू दया दिखाता है, बन करके मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां पे तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। उठने मैं देखूं तेरे सामने, तुझे मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, पवित्र,
तू पवित्र यीशु पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु ओ पवित्र तू पवित्र तू पवित्र राजा यीशु राजा मेरा राजा मेरा राजा मेरा राजा स्वामी मेरा स्वामी मेरा स्वामी मेरा स्वामी यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरे तू इस जगह को भर भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया 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 Thank you, Jesus. पवित्र अति पवित्र स्थान में ईश्वर प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु। गाओ हमारे साथ पवित्र अति पवित्र स्थान में मुझको तू अपने लाहू से धो ले मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते हैं। आइए अपने सिर को झुकाएंगे। सजदा हम करते आराधना करते हैं। पवित्र पवित्र आनंद तो तू लाहू से होले शुद्ध
जल को छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। आराधना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल को छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, हो मुझको तू अपने लहू से धोले। मुझको जानू उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतने ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतने ही आशीष पाऊं। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अति अपने लाभ से धोले। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे राजा, मेरे खुदा, मेरे मसीह। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। परम पवित्र, आज जितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर तेरी प्रार्थना में भाग लिया, सबों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। उन सबों के जीवन पर तेरा सामर्थ्य आशीर्वाद मांगता हूं परमेश्वर। इन सब लोगों को तेरे पवित्र आशीष से पवित्र आत्मा के द्वारा छू ले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता। इनमें से हर एक परिवार जिन्होंने प्रभु परमेश्वर तेरे सामने नम्र होकर तुझे गौरव और महिमा और सम्मान दिया, तेरी स्तुति आराधना की और कर रहे प्रभु जी, उन सब को आशीषित। मैं इन सब लोगों को तेरे नाम से आशीर्वाद देता हूं, ये सब लोग आशीषित हो जाए और इनकी रक्षा को कर। सारी आपत्ति विपत्ति से प्रभु जी, रोग और बीमारी से प्रभु जी, अंधकार की सारी शक्तियों से इनकी रक्षा कर। पूरा हफ्ता अपने संभाला और इस समय तक अपने संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। भजन संहिता 139 139, साम 139। अपने अपने बाइबल सब लोग खोले। मैं एक वचन पढ़ूंगा हिंदी में, आप अपनी भाषा में पढ़े। ओके, रेडी? 139 मैं पढ़ता हूं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, என் உட்கார்தலையும் என் எழுதலையும் நீ அறிந்திருக்கிறீர், என் நினைவுகள் தூரத்திலிருந்து அறிந்திருக்கிறீர்। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है।
என் நாவில் சொல் பிறவாதற்கு முன்னே இதோ கர்த்தாவே அதையெல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। இந்த அறிவு எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமும் எனக்கு எட்டாத உயரமாயிற்று. यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी वहां भी है। நான் வளர்த்து செட்டைகளை எடுத்து சமுத்திரத்தின் கடையார்ந்தங்களில் போய் தாக்கினேன். तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। இருள் என்னை மூடிக்கொள்ளும் என்றாலும் இரவும் என்னை 11 पढ़िए, வெளிச்சமா இருக்கும். आप 11 पढ़िए सब लोग। हो गया? तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। நீர் என் உள்ளுதயங்களை கைக்கொண்டிருக்கிறீர், என் தாயின் கர்ப்பத்தில் என்னை காப்பாற்றினீர். मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। நான் ஒளிபீடத்தில் உண்டாக்கப்பட்டு பூமியின் தாழ்பாள்களிலே விசித்திர விரோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட போது என் எலும்புகள் உமக்கு மறைவாய் இருக்கவில்லை. तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। தேவனே, மது ஆலோசனைகள் எனக்கு எத்தனை அருமையானவைகள், அவைகளின் தொகை எவ்வளவு அதிகம். यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के गिनतों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। தேவனே, நீ துன்மார்க்கனை அறியாததினால் நலமாயிருக்கும் இரத்தப்பிரியரே, நீங்கள் என்னை விட்டு क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। इस पढ़ना। கர்த்தாவே, உம்மை பகைக்கிறவர்களை நான் பகையாமலும் உமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களை அருவருக்காமலும் இருப்பேனோ. पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। 23 என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும், என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும். आमेन। सब लोग साथ में पढ़ेंगे। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमेन। गवाही का समय है और जो भी गवाही देगा अपना हाथ इस तरह से उठाएगा और अपनी गवाही देगा। परमेश्वर ने जो भी उपकार आप पर किए हैं, उन उपकारों को स्मरण करके हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जिनके पास गवाही है अपना हाथ ऊपर करे और ब्रदर सबको अनम्यूट करना। जो गवाही देगा वो उसको अनम्यूट करना। ओके, क्या राकेश की पत्नी गवाही दे रही है? राकेश प्रजापति को अनम्यूट करो। यस, मैं गवाही देना चाहती हूँ। हम लोग चारों बीमार थे, मैंने प्रार्थना किया है, लॉकडाउन लगा, पैसा इतनी बड़ी बीमारी की चारों जन बीमार हो गए। फिर मैंने प्रार्थना किया और प्रभु को धन्यवाद किया, फिर इसके बाद चारों भला चंगा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आगे यस ब्रदर, या ब्रदर विल्सन। परमेश्वर के नाम को स्तुति करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ता में मेरा बेटी जेनिस को बहुत उसका जो है ब्लीडिंग का कारण उसको बहुत कमजोर हो गई थी। उसको जो है एकदम मतलब अनकॉन्शियस हो के हम लोग हॉस्पिटल में जो है रात को 12 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट किया था। फिर दूसरा दिन जो है खून चेक किया तो हम लोग का खून जो है उसको दो का नीचे आ गया था, 2 पॉइंट समथिंग आ गया था। तो हम लोग को कुछ पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, हम लोग को कुछ मालूम नहीं। कहाँ जाओ, हॉस्पिटल ने बोल दिया था कि हम लोग का ये हॉस्पिटल में नहीं होएगा, अब दूसरा हॉस्पिटल में लेके जाओ करके। हम लोग को पता नहीं है कहाँ जाओ, किसको मिलो, क्या करो, कुछ पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर वो हॉस्पिटल में लेके गया, लेके जाके उसको सारा सुविधा करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। ये किसी का मतलब
कोई संभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर उसको आश्चर्य रीति से उसको जो है चंगाई दिया। 3-4 दिन वहां पर हॉस्पिटल में रहने के लिए सहायता किया, लेकिन पूरा जो है उसको खून जो चाहिए था खून तुरंत मिला। उसको जो है जरूरत था, परमेश्वर ने सारा सुविधा करके, परमेश्वर साथ रखे। जो संभव नहीं है, जो असंभव है वो संभव करके परमेश्वर ने जो है अच्छा रीति से उसको चंगाई देके आज के दिनों में यहाँ पर आके प्रार्थना में बैठने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। ये आश्चर्य काम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कुछ डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपना बच्चों को संभाला। परमेश्वर ने अपना बच्चा को संभाल के हर स्थिति में उसका साथ रह के परमेश्वर ने जो है चंगाई दिया। इसके लिए परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इस समय इसके नाम को महिमा होने दे। आमीन। और कोई गवाही? या सिस्टर सोनामती, सोनामती को अनम्यूट करना ब्रदर, सोनामती को अनम्यूट करना। आया ना? ओके सोनामती बोलिए। तो धन्यवाद कि हमारा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, वो बाथरूम हो रही थी लैट्रिन। अपने सिस्टर को मैं फोन करके बोले कि हमारा ज्यादा तबीयत खराब हो गया सिस्टर, तो उसने हमारे लिए प्रार्थना भी की, दवा भी बताई, कुछ मैंने ली। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे साथ में है, हम लोग को सब लोग को संभाल के रखे हैं अभी तक ले। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कोटि कोटि, जितने भाई बहन है सबको। और कोई? प्रेज गॉड। छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। 20 साल पहले इसी महीने में मेरे भाई और बहनों, मैंने मेरा जॉब छोड़ के प्रभु के पाचारण के अनुसार मैंने इसी महीने में 16 जून 2000 में मैंने जॉब छोड़ा और प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण किया। तब से लेकर अब आज 14 तारीख है और 2 दिन बाकी है। 20 साल परमेश्वर ने मुझे इस पूर्ण समय की सेवकाई में संभाला और इस 20 साल में परमेश्वर ने महान रीति से मुझे चलाया। बहुत परीक्षाएं, दुख, तकलीफ आई, बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन सुसमाचार का काम करते करते परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया और 20 साल पूर्ण रीति से। उससे पहले मैं पार्ट टाइम सेवा करता था, काम करके सेवा करता था, लेकिन अब पूरी तरह से मेरा जीवन परमेश्वर को दिए हुए 20 साल पूर्ण हो रहे हैं और 20 साल प्रभु ने संभाला और यहाँ तक लाया, कलीसियाओं को बढ़ाया, कई सारे लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को परमेश्वर ने मेरे साथ रखा है प्रभु की सेवा के लिए। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो भी कुछ उसने मुझे दिया है। आप सब जो मेरे साथ सेवा के लिए खड़े हैं और जो भी आप करते हैं, मेरे साथ रहकर प्रार्थनाएं करते हैं, मदद करते हैं, आप सबों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परसों के दिन फ्राइडे को मैं, भाई डोमिनिक और भाई पॉल, हम लोग तीनों पालघर गए थे। मैंने अपने मैसेज में विक्रमगढ़ लिखा था, लेकिन वो विक्रमगढ़ में नहीं आती है, वो इलाका विक्रमगढ़ में नहीं, लेकिन पालघर तालुका में आता है। तो ये 10वीं कलीसिया जो पालघर में हम लोग ने हमें परमिशन दी है, उसके पैर के फोटो मैं नहीं डाल सका, मैंने निकाले नहीं थे, लेकिन वहां के बाकी फोटो मैंने डाल दिए थे। करीबन 25 से 30 लोग वहां मौजूद थे। जंगल में अंदर हम चल के गए और वहां जंगल में एक ही घर है जहां सारे विश्वासियों को बुलाया गया था और पूरा दिन प्रार्थना में हम लोग ने वहां बिताया और उन लोगों को खाना भी हमारे तरफ से हमने उनको दिया, अपनी कलीसिया की तरफ से दिया, अच्छा भोजन उनको दिया और बहुत सुंदर
रीति से परमेश्वर ने वहां वचन प्रचार करने के लिए, उनको सिखाने के लिए सहायता की। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को प्रार्थना करने के लिए कहा था और आप लोगों ने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने हमारी रक्षा की। सुरक्षित प्रभु हमें लेके गया और बहुत सुरक्षित लेके आया और बहुत सुंदर रीति से प्यारे भाई और बहनों वहां कार्य हुआ। देखो कलीसियाएं बंद है, प्रार्थनाएं के लिए हम लोग एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हमने ऐसी एक योजना बनाई कि ऐसी जगह हम इकट्ठा होंगे जहां कोई हमको देखेगा नहीं, लेकिन हम जंगल में जाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। तो उस दिन हम लोग जंगल में गए और जंगल के बीच में, पहाड़ियों के बीच में वो प्रार्थना सभा हमने ली और बहुत सुंदर प्रार्थना सभा हुई। उसके फोटो आपको मैं भेज दूंगा और आप देख लेना, प्रभु को महिमा देना। अगले महीने में हम लोग और एक बार जंगल में दूसरी जगह जाने वाले हैं, विक्रमगढ़ के एक और जंगल में हम लोग जाने वाले हैं, जहां सारे विश्वासियों को वहां बुलाया जाएगा और उनके साथ प्रार्थना की जाएगी। तो इस तरीके से भले दुष्ट शैतान कलीसिया को इकट्ठा होने से रोक रहा है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह में उसका सुसमाचार का काम करते रहेंगे। आप प्रार्थना करो मेरे लिए कि मैं जाकर उन लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सकूं और उन्हें प्रभु के आने के लिए तैयार कर सकूं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप प्रार्थना करना हमारे लिए और आपके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। और धन्यवाद करता हूँ भाई विल्सन की बेटी को प्रभु ने बचाया और बहुत सारे लोग बीमार थे हमारे साथियों कलीसिया में भी, तो वो उनको भी बचाया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु आगे भी आपको बचाता रहेगा। प्रेज गॉड। ओके, और कुछ आगे ब्रदर? यस ब्रदर राज। पाठवलं ना रे, तुझं कुठे आहे? Amen. पाठवलं ना त्याला? हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। Psalm 91 verses 9 and 10। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। Psalm 91 verses 11 and 12। Spread out to the right and to the left. Isaiah 54:3। The Lord is your keeper. The Lord is your shade and your light. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Psalm 121, 5 and 6। He will not allow your foot to be moved. He who will not stumble. Behold, he who keeps his life neither stumble nor sleep. Psalm 121। सबको एक सूचना है, तो अपना कलीसिया वेस्ट का ईस्ट का भाई लोग भी अपने बच्चों लोग का जो वचन है आप रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है ये भेजने के लिए आप फ्राइडे तक भेजेंगे तो ही वो मर्ज करके हम टेलीकास्ट कर पाएंगे। सब लोग आप जो कलीसिया में नहीं आए हैं अभी, वो भाई बहन लोग को भी आप बता सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके यहाँ मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, नहीं रहेगा तो अपने ग्रुप में भेज सकते हैं। आपको मैं पास्टर नंबर शेयर कर लेंगे, उस नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। ओवर टू यू पास्टर।
Yeah. Praise God. Okay. Okay. प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। फिर से एक बार पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर और सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों की तू सहायता अगुवाई कर, उनके आत्मिक कान तू खोल, मेरे जुबान को तू छू ले प्रभु। हर एक लफ्ज, हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकलेगा, पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु निकलने के लिए सहायता कर। मैं कुछ न बोलूं, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन मेरे मुख से प्रभु निकले, तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुझ में होकर बातें करे और सुनने वालों को अनुग्रह, शांति और मुक्ति प्राप्त। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु पिता। सारा आदर तुझे देता हूं प्रभु परमेश्वर। इस समय तू पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को चला, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन। सब लोग कहे आमेन। बुक ऑफ हिब्रू, ब्रदर विल्सन को अनम्यूट करना ब्रदर। हमने गए संडे इब्रानी की किताब से 1 से 7 तक पढ़ा था और हमारा विषय था कि ताड़ना देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर जो अपने बच्चों से प्रेम करता है उनको ताड़ना देता है, उन्हें वो बोल लगाता है, उन्हें वो फटकार लगाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने लोगों से प्रेम करता है। तो हमने देखा था कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उसे वो ताड़ना देता है। इसके लिए जब भी परमेश्वर अपने भलाई के लिए, हमें और भी बेहतर बनाने के लिए, हमें और भी आशीषों से भरने के लिए परमेश्वर जब हमें ताड़ना देता है, हमारे ऊपर कोई हल्का सा संकट आता है, तो उस ताड़ना को या उस परिस्थिति को, उस दुख को हम हल्के से न ले, लेकिन यह जाने कि मेरा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, वो मुझे बना रहा है, क्योंकि वो कुम्हार है, तुम और हम मिट्टी के समान हैं और मिट्टी पर कुम्हार का अधिकार है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, तुम पर और हम पर परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। सो बाइबल कहते हैं, हमने 7 वचन में पढ़ा था, दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। पुत्र जानकर एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, तो मैं महसूस करता हूं, बहुत सारे भाई बहनों को ये बात कहना कि इनके पास अच्छे मोबाइल है, लेकिन वे लोग जुड़ते नहीं है प्रार्थना के लिए। हमारे साथी वाले के लोग भी जुड़ते नहीं है। कई बार हमारे रस्ते के लोग एब्सेंट रहते हैं, एक आधा परिवार, 1-2 परिवार कई बार एब्सेंट रहते हैं। आपसे निवेदन है कि ये कठिन समय चल रहा है, प्यारे भाई और बहनों, सहभागिता नहीं है हमारे पास, हम लोग साथ में नहीं मिल सकते हैं। एटलीस्ट इस तरीके से जूम प्रार्थना पर हम लोग मोबाइल पर या लैपटॉप पर एक साथ जमा हो, एक दूसरे को देखे, एक साथ आराधना करे, स्तुति करे और वचन को सुने, क्योंकि यही इतनी भी तुम बात करेंगे तो आपके आत्मा के लिए, आशीष के लिए ये बात आपके लिए काफी होगी, क्योंकि एटलीस्ट प्रभु का वचन तुम्हारे कानों पर आएगा और तुम आशीषित हो जाएंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, जो भी प्रकार के दुख से तुम जा रहे हो, संकट या परीक्षा से जा रहे हो, परमेश्वर की ओर से समझना कि ताड़ना है, आपके भलाई के लिए है। परमेश्वर इसमें से भलाई ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि बाइबल कहते हैं जो भी बातें होती हैं, हम देखेंगे रोमियो 28 में, रोमन्स 8:28, रोमन्स 8:28, रोमियो की पत्री 8:28। ब्रदर विल्सन पढ़िए। அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்புகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம்। आमीन। हम जानते हैं कि
जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे सांत्वना के लिए, हमारे विश्वास के बढ़ोतरी के लिए, बाइबल कहती है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आप अपने पिता से, अपने उद्धारकर्ता से प्रेम रखते हो क्या? अगर रखते हो तो आपके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द हालेलुया, लॉर्ड। हालेलुया, जीवन में सब बातें, चाहे वो तुम्हारी नजर में, मेरी नजर में बुरी हो, गलत हो, लेकिन जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम रखते हैं, तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में जो प्रभु से प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगे। यानी कि तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकेगा और तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर को हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया। हालेलुया, बहुत सुंदर है प्यारे भाई और बहनों की परमेश्वर तुम्हारे साथ पुत्र और कन्या समझकर, you are the children of God, we are all are the children of God, okay, and he treat us यानी कि हमारे साथ बर्ताव करता है पुत्र के जैसा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की नजर में, उसके नजर में, उसकी ओर से आशीषित हो इस धरती पर, और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें और हमें उसकी महिमा के लिए सृजा है। हालेलुया। महिमा के लिए बनाया है परमेश्वर ने, हम उसके पात्र है, महिमा के पात्र है, उसके लहू से खरीदे हुए उसके लोग हैं। और परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे द्वारा ही परमेश्वर को महिमा मिल सकती है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को महिमा किनके द्वारा मिलेगी? क्या धरती पर जो पापी लोग हैं उनसे मिलेगी? नहीं। परमेश्वर ने जिन पापी लोगों का उद्धार किया है, तुम और हम, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जो भी आपके जीवन में है, चाहे वो कोई बीमारी आ सकती है, चाहे वो कोई बाहरी समस्या हो, चाहे और कोई समस्या हो, लेकिन हर चीज को आप ये समझना कि इसमें से मेरे लिए परमेश्वर अच्छा ही उत्पन्न करेगा। लॉकडाउन है, आज नौकरियां नहीं चल रही है, सही ढंग से पैसा हाथ में नहीं आ रहा है, बहुत तकलीफ परेशानियां चल रही हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं इसमें से, इस अंधकार से उजियाला उत्पन्न होगा, भलाई ही उत्पन्न होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के लिए लॉकडाउन होगा, दुनिया के लिए लॉकडाउन है, दुनिया के लिए बंधन है, लेकिन परमेश्वर जल्दी ही अपने बच्चों को इस बंधन से छुटकारा देगा और परमेश्वर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो ब्रदर, 8 से लेकर 11 तक पढ़ना ब्रदर विल्सन। कौन सा बस? 8 से लेकर इब्रानी 12, हिब्रू 12। अच्छा, इब्रानी का 8 से लेकर 11। எல்லாருக்கும் கிடைக்க சிச்சை உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் நீங்கள் புத்திரரா இராமல் வேசி பிள்ளைகளா இருப்பீர்களே. அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிச்சிக்கும் போது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சி நடந்திருக்க நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா? அவர்கள் தங்களுக்கு நலமென்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிச்சித்தார்கள். இவரோ நம்முடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிச்சிக்கிறார். எந்த சிச்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணாமல் துக்கமாய் காணும். ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனை தரும். ஆகையால் நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்தி 12 तक है ना? हम या नहीं 11 तक पढ़ेंगे, बाद में 12 पढ़ेंगे, बाद में 11 तक। ओके। सो यहाँ लिखा है प्रतिफल मिलेगा। बाइबल कहते हैं
प्रतिफल मिलेगा, और प्रतिफल मिलना, प्रतिफल प्राप्त करना, यही मसीहों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप और हम इस धरती पर इसीलिए हैं कि परमेश्वर के ओर से हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिले, और प्रतिफल ये प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। बिना काम, बिना कुछ सहन किए, बिना परीक्षा का सामना किए, बिना दुख उठाए कोई भी प्रतिफल नहीं पाता है। तो हर विश्वासी को थोड़ा बहुत दुख या ताड़ना मिलती है, और कईयों को ज्यादा मिलते, कईयों को कम मिलती है। मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहते हैं यदि वो ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं, यहाँ लिखा है सब, एवरीवन इज पार्ट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, ओके, एवरीवन, सब लोग को ताड़ना होती है, ओके। नहीं, अगर ताड़ना नहीं होती है तो तुम पुत्र नहीं हो। अगर पुत्र हो तो तुम्हारी ताड़ना होगी। अगर आपका बाप आपसे सही प्रेम करता है, आपका डैडी, आपके मम्मी आपसे सही प्रेम करते हैं, तो आपको वो ताड़ना देंगे, आपको चाटा मारेंगे, आपको बोल लगाएंगे, आपको कड़क भाषा में भी बोलेंगे, आपको डांटेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी भलाई हो, आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, आप सही रास्ते पर चले, इसलिए परमेश्वर आपको ताड़ना देगा, क्योंकि वो आपको पुत्र समझता है। आप व्यभिचार की संतान नहीं है, हम व्यभिचार की संतान नहीं है, हम जिंदा खुदा के बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम जिंदा खुदा के बच्चे हैं। इसलिए परमेश्वर तुम्हें और हमें अपने अपने पापों के लिए या अपनी गलतियों के लिए, या बार बार गलतियां करना, बार बार पाप करना, बार बार परमेश्वर से दूर जाना, अगर ऐसा होता है तो परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देगा। परमेश्वर अपने बच्चों को शासन करेगा, और शासन करना इसका मतलब कि परमेश्वर तुमसे, हमसे प्रेम रखता है। आज संपूर्ण जागतिक कलीसिया को तकलीफ उठानी पड़ रही है। जागतिक कलीसिया को बहुत सारे बंधन से जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कलीसिया भी कहीं ना कहीं गलत दिशा से जा रही थी, परमेश्वर के लोग भी गलत दिशा से जा रहे थे, और परमेश्वर ने सहन कर लिया। और प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दुनिया के लोगों को भी वही और परमेश्वर के लोगों को भी वही समान दुख दिया है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को इसलिए कि परमेश्वर के लोग समझ रखे, बुद्धि रखे, परमेश्वर के सामने नम्र हो, पश्चाताप करे और परमेश्वर को खोजे। क्योंकि बाइबल कहते तुम यहोवा की खोज करो तो तुम जीवित रहोगे। तुम्हें और हमें इन दिनों में परमेश्वर की खोज करना है। तो इसलिए जब ताड़ना होती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो डरना नहीं है, ये समझना कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा डैडी मुझसे प्रेम रखता है और मुझे और भी बेहतर बनाता है, क्योंकि वो कुमार है, हम मिट्टी है, और वो तुम्हें और हमें भट्टी में डालेगा, तुम्हें और हमें वो तोड़ेगा और आकार देगा। हालेलुया, अच्छा शेप देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने जिंदगी को अपने स्वभाव में या अपने आचरण में, अपने सारे कामों में हम कुशल बने, अच्छे बने, परमेश्वर चाहता है। और आप भी जैसे चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपके कहने पर चले, आपकी शिक्षा पर चले, ताकि आपके बच्चों का भला हो, ऐसा आप चाहते हो। वही परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा भी भला हो, कि तुम भी परमेश्वर के ओर से आशीषित हो। जैसे शारीरिक पिता हमारे ताड़ना किया करते थे, हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता की और भी अधीन रहे जिसमें हम जीवित रहे? कई बार समस्या, तकलीफ और परेशानी, परीक्षा आने के बाद लोग परमेश्वर के विरोध में दंडखोरी करते हैं, बलवा करते हैं। दो चीजें होती हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारी ताड़ना होती है, हमारे ऊपर कुछ तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो एक तो वो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में जाकर बंडखोरी करता है या बलवा करता है, या फिर वो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन हो जाएगा और परमेश्वर का आदर करेगा। यहाँ लिखा है कि हम अपने पिता का आदर करते थे। आजकल बहुत कम बच्चे पिता का आदर करते हैं, बहुत कम बच्चे। उनको ताड़ना या एक चाटा मारना उनको सहन नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बुद्धिमान होते हैं। लेकिन यहाँ कहता है कि जब शारीरिक पिता तुम्हारी ताड़ना करते थे तो उनका आदर करते थे, तो हमारे आत्माओं का जो पिता है, क्या हम उसके अधीन?
हम उसके अधीन रहेंगे जिससे हम जीवित रहें। Praise the Lord। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है कि परमेश्वर को शरण जाते, शरण जाना। ये तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। बड़े होने के बाद कोई अब बच्चे को ताड़ना नहीं देता है, क्योंकि वो सयाने अपनी समझ के अनुसार ताड़ना दे देता है कि वो हमारे लाभ पर वो तो यानी कि परमेश्वर हम पवित्रता के भागी हो जाए, so that we become the partner of His holiness। हालेलुया। परमेश्वर हमें पवित्र और गंदा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। बाइबल कहते हैं हम उसके पवित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे पवित्रता में जीना सीखना चाहिए। हालेलुया। पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर हमें ताकत पवित्र है और वो हमें दर्द देकर, दुख देकर, कष्ट देकर कई बार हमें और भी शुद्ध और पवित्र बनाता है और अच्छा बनाता है। वर्तमान में बाइबल कहते हैं वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती है, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। हालेलुया। भाई विल्सन, आपको तकलीफ हुई, आपकी बेटी बीमार हुई, आपको तकलीफ हुई, आपको दर्द हुआ ना? दर्द हुआ बस। यस, आप दर्द हुआ, आप रोते थे, आपकी पत्नी रोती थी, मैं भी रोया हूं, आप भी रोए होंगे, क्योंकि बाइबल कहते हैं कोई भी ताड़ना आनंद की नहीं होती। कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी हमें आनंद नहीं देती है, शोक देती है, दुख देती है। लेकिन जो लोग उसकी सहते सहते पक्के हो गए हैं, दुख का सामना कर कर व्यक्ति पक्का होता है, मजबूत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग प्रभु में दुख सहते हैं, वो दुख सहते सहते मजबूत हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाद में बाइबल कहते हैं बाद में बहुत सुंदर लिखा है, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले दुख, पहले कष्ट, समस्या है, हमारे जीवन में सताव भी आएगा। ओके, परमेश्वर आपके विरोध में लोग आपको तकलीफ देंगे, आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, आपको लोग तकलीफ देंगे, लेकिन इन सबों के द्वारा तुम और हम विश्वास में, प्रभु के प्रेम में मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति मजबूत दिखाई देता है वो क्यों मजबूत होता है विश्वास में? क्योंकि उन्होंने कई सारे दुखों का सामना किया होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कई सारे दुखों का सामना किया होता है। आपके जीवन में आप अकेलापन भी महसूस होगा। यू विल फील लोनलीनेस। आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको लगेगा आपके साथ कोई नहीं है, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं है। शायद आपको लगेगा पति भी आपका नहीं है, आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं है। ऐसा भी समय आपके जीवन में आएगा कि आपकी कोई सुनता नहीं है, आपके बाजू में कोई भी खड़ा नहीं है। परमेश्वर कई बार आपको अकेले छोड़ देगा। परमेश्वर मसीह, परमेश्वर का पुत्र भी अकेला छोड़ा गया प्यारे भाई और बहनों, वो अकेला दुख उठाया। कई बार तुम्हें और हमें अपनी जिंदगी में अकेला दुख उठाना पड़ता है। परमेश्वर अपने बच्चों को इस तरह से अकेला रहने देता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अकेला छोड़कर कुछ सिखाना चाहता है। यूसुफ अकेला गिर गया, कोई नहीं था उसके पास, लेकिन जहां भी चला गया परमेश्वर यूसुफ के संग रहा, और यूसुफ को परमेश्वर ने बहुत बड़ा इंसान बनाया, उस देश का पीएम बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि जितना तुम और हम सहन करते रहेंगे, बाइबल कहती है कि हमें धर्म का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। the reward of righteousness, धर्म का प्रतिफल मिलेगा, न्यायपन का प्रतिफल मिलेगा। हम जाएंगे बुक ऑफ जोब, अय्यूब की किताब, 5वीं अध्याय। अय्यूब की किताब सुन रहे हैं मेरे? आपको सुनाई देता है? अय्यूब की किताब अय्यूब की किताब 5वीं अध्याय
बुक ऑफ जोब, యోబు అంచి అయ్యూబ్ ना యోబు बुक ऑफ जोब, अय्यूब की किताब 5वीं अध्याय। मिला? ओके ब्रदर विल्सन, 17 से लेकर पढ़ना, 17, 18, 19, 17, 18, 19 पढ़ना, 17, 18, 19। இதோ தேவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், ஆகையால் சர்வ வல்லருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாதிரும். அவர் காயப்படுத்தி காயம் கட்டுகிறார், அவர் அடிக்கிறார், அவருடைய கை ஆற்றுகிறது. 6 இக்கட்டுகளுக்கு உம்மை நீங்களாக்குவார், 7வதிலும் பொல்லாப்பு உம்மை தொடாது. आमेन। 3 वचन पढ़ा? हाँ 3 पढ़ा। ओके हो गया बस। हिंदी में पढ़ता हूं। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य, सब लोग सुने, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, बहुत सुंदर वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे लोग, यस, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। God punishes you, God chastise you. This chastisement is ये जरूरी है कि परमेश्वर जब हमें ताड़ना देता है, उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता है। हमारे जिंदगी से, हमारे अंदर से कुछ गंदगी निकालना चाहता है परमेश्वर। हमारे अंदर से वो बलवा का स्वभाव, हमारे अंदर से सब प्रकार की बुराई की जड़, हमारे अंदर से कड़वापन, हमारे अंदर से सब प्रकार की निंदा, द्वेष, मत्सर की बातें परमेश्वर निकालना चाहता है। इसलिए कई बार परमेश्वर हमें दुख के भट्टी में डालता है और परमेश्वर हमारी परीक्षा भी करता है। वो कहता है कि सर्वशक्तिमान की ताड़ना तो तुच्छ मत जान, हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। जब हमारी परिस्थिति बिगड़ती है, हमारी पारिवारिक परिस्थिति बिगड़ती है, हमारी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ती है, हमारी मानसिक परिस्थिति बिगड़ती है, हमारी आत्मिक परिस्थिति बिगड़ती है, आपको और हमको परमेश्वर के अधीन जाना है। ओके, सर्वशक्तिमान को के अधीन होना है, उससे शरण जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सब चीजों से छुटकारा देता है। धन्य है हम जब परीक्षा का सामना करते हैं, धन्य है हम जब परमेश्वर में ताड़ना देता है। वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है। मेरे भाई और बहनों, आप दुखित हैं, आप परेशान हैं, आपका दिल टूट गया है, आप कमजोर पड़े हुए हैं, आप अपनी जिंदगी के लेकर, हालातों को लेकर परेशान हैं, आपका हृदय रो रहा है। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, वो अगर आपको दुख भी होने देता है तो आपको वो इलाज भी करेगा। वो यहोवा राफा है, हालेलुया, वो यहोवा राफा है, वो तुम्हारे लिए उपाय भी करेगा, हालेलुया, वो तुम्हारे लिए उपाय भी करेगा। He will heal you, he will heal your wounds, वो आपके जख्मों पर पट्टी बांधेगा। Praise the Lord। परमेश्वर कहता है, वो घायल करता है और वो पट्टी भी बांधता है, वो मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। Praise the Lord। ये परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए बाइबल कहती है कि तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना, क्योंकि वो आप हमको पुत्र समझकर, आपकी कन्या समझकर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इसलिए वो कई बार हमें ताड़ना भी देता है। और आगे भी सुंदर कहता है, इतनी विपत्ति से वो तुम्हें छुड़ाएगा। 6 में वो कहता है 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, और 7 में भी वो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखो अय्यूब के पुस्तक में लिखा है, आप कहते हैं, आप कहेंगे फिर अय्यूब को इतना सब खोना पड़ा, अय्यूब ने खोया, लेकिन अय्यूब को परमेश्वर ने दुगना भी दिया। प्रेज द लॉर्ड। 6 विपत्तियों से परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, और इसी वचन में कहता है, इसी पुस्तक में कहता है कि वो 7 से भी तुम्हें और हमें छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है।
वो हमारा नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो भी परिस्थितियां हालातें आपकी जिंदगी में होगी, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं जिन्होंने अपने पे विश्वास नहीं छोड़ा। अय्यूब ने अपना सब कुछ खोया लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। ऐसे भी विश्वासी हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए, अपने पति खोए, अपने बच्चे खोए, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। ऐसे भी इस दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप डरो मत, क्योंकि परमेश्वर 6 नहीं 7 विपत्तियों से भी आपको छुड़ाएगा। और ये विपत्ति जो दुनिया में आई है, इस विपत्ति से भी परमेश्वर तुम्हें और हमें छुड़ाएगा। ये कोरोना वायरस तुम्हारा मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर सकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कोरोना वायरस हमारा तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, ये हमें छुएगा भी नहीं। जब तक तुम और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ है, हमारी जिंदगी सही है और हम प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं, ये वायरस तुम पर हम पर हावी नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 20, 21 और 22 ब्रदर विल्सन 20, 21, 22 भी पढ़ो। उसी अय्यूब यस 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 20, 21, 22 பஞ்சகாலத்திலே அவர் உம்மை மரணத்துக்கும் யுத்தத்திலே பட்டயத்தின் வெட்டுக்கும் விலக்கி மீட்பார். நாவின் சவுக்குக்கும் மறைக்கப்படுவீர். பாழாக்குதல் வரும்போதும் பயப்படாமல் இருப்பீர். பாழாக்குதலையும் பஞ்சத்தையும் பார்த்து நகைப்பீர். காட்டு மிருகங்களுக்கும் பயப்படாதிருப்பீர். Amen. हो गया बस, आमीन। या हो गया, 3 हो गया ना? ओके। हो गया। अकाल में सुनो, हिंदी में सुनो। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे होंगे तो ये वचन बहुत सुंदर वचन है। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अकाल में तुझे मृत्यु से, आने वाले दिनों में रहेंगे पता नहीं, लेकिन प्रभु रहने भी देगा तो भी बाइबल कहते हैं अकाल में वो तुझे मृत्यु से, युद्ध में तलवार की धार से बचा देगा। यानी कि धरती पर जो भी इन दिनों में परिस्थितियां हैं, परमेश्वर का वचन तुम्हें और हमें कहता है कि विनाश और अकाल से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, तुम हंसमुख रहेंगे। हालेलुया। मैं इन 3 महीनों में प्रभु की दया और कृपा से हंसमुख हूं। मैं शांति में हूं, मैं आनंद में हूं, मुझे किसी चीज का डर या भय नहीं है, क्योंकि मैं सब दुखों से पार हो चुका हूं। दुख, तकलीफ, परेशानियां, रोना क्या होता है, दिल टूटना क्या होता है, बीमारियां क्या होती है, मैंने सब अनुभव किया है। मृत्यु क्या होती है, अनुभव किया है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मुझे अभी डर नहीं है। वचन के अनुसार इस स्थिति से प्रभु मुझे लेके गया है, और इस विनाश में, जो विनाश इस धरती पर चल रहा है, जो अकाल इस धरती पर हो रहा है, और लोग अपने सब कुछ हो रहे हैं, लोग बेकार हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, और सब प्रकार की विपत्तियां आपत्तियां धरती पर हम देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मुझे उसका कोई डर नहीं है। मैं 3 महीने में घर में छिप कर नहीं बैठा। मैं 3 महीनों में हमेशा घर से बाहर निकलता रहा और सब जगह जाता रहा। प्रभु ने मेरी सहायता की, किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें और हमें डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि आप बचे रहेंगे, आपको कुछ भी हानि नहीं होगी, और किसी भी प्रकार की कोई डर या भय की बात आपकी जिंदगी में नहीं होगी, क्योंकि प्रभु आपके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ मैं रुकता हूँ। जो भी वचन आज आपने सुना है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपकी सहायता करे और आपकी मदद करे। परमेश्वर आपको और भी उन्नति करे आपकी,
आपके परिवार को तो आशीष करे, आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के सहित प्रार्थना में बैठना, और प्रभु जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। जो भी आपके हमारे कलीसिया में आसपास आपके जो कमजोर लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना, उनके घर पे जाना अगर हो सकता है तो, अन्यथा मत, या फोन से बातें करना। मैं एक चीज कॉमन देख रहा हूँ, इतने संकट के समय में भी बहुत सारे लोग एक दूसरे को फोन भी नहीं करते हैं। सुनना मेरी बात, सबको बुरा लगेगा, लगने दो, बुरा लगेगा लगने दो, लेकिन सच्चाई सच्चाई, इतने 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 कठिन दिन चल रहे हैं जिसमें एक दूसरे को फोन करके चौकसी करना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां 3 महीने पहले थी, वही स्वभाव, वही चाल चलन, वही हटीलापन, उसमें कोई फर्क नहीं है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, वही चाल चलन है। एक दूसरे को फोन नहीं, एक दूसरे का हालचाल पूछना नहीं है, हर बार मैं ही सबको फोन करूं, या फिर गिने चुने लोग ही किसी को फोन करते हैं। ये कौन सा तरीका है, कौन सा जीवन है ये? जब एक साथ नहीं मिल सकते हैं तो एटलीस्ट फोन का तो इस्तेमाल करो। 8 दिन में 15 दिन में एक तो फोन करो। लेकिन एक एक परिवार को मैंने देखा 3-3 महीने में एक भी फोन नहीं उनका, 3-3 महीने हुए लॉकडाउन को, एक भी फोन नहीं। ऐसे भी विश्वासी है, कौन सा विश्वासु जीवन है? शर्म आनी चाहिए। थोड़ा मैं कड़क बोलता हूँ, क्षमा करना, मैं थोड़ा कड़क बोल रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम विश्वासी कहलाते हैं, जबकि हम इन दिनों में साथी कलीसिया के लोगों को भी मैं कहता हूँ, सुन रहे होंगे साथी वाले, तो वो भी ऐसे ही इन दिनों में। जब शुरू में जब डर था ना, तो एक दूसरे को फोन करते थे जरूरत के लिए। अब जरूरत खत्म हो गई तो फोन बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन नहीं है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए बुलाया है। आपके घर में लाखों रुपए हो सकते हैं, आप मत सोचना कि तुम्हारे लाखों रुपए तुमको बचाएंगे, लेकिन जो जरूरतमंद भाई है, बहन है, परिवार है, उनको हेलो, व्यायाम मत करना ब्रदर, ये आप स्क्रीन में दिखाई देते हैं मुझे, आप एक्सरसाइज मत करो, इधर एक्सरसाइज बाद में करना। ओके, ध्यान से सुनना कि इतने कठिन समय में तुम किसी को फोन नहीं कर सकते, किसी का हालचाल नहीं पूछ सकते। बाइबल कहते एक दूसरे का बोझ उठाओ। कैसे बोझ उठाएंगे तुम? एक अपने भाई को, बहन को फोन नहीं कर सकते हैं और ये सोचते पास्टर ही हमको फोन करे। पास्टर नौकर है तुम्हारा जैसा, पास्टर नौकर होता है कि पास्टर ही फोन करे। एक दूसरे को फोन करो, सिर्फ अपने जिनसे प्रेम करते हो इनसे, उनसे ही मत फोन करो। यीशु ने कहा जो तुमसे प्रेम रखते हो उनसे तुम प्रेम रखेंगे तो क्या तुम्हारी बड़ाई होगी? जो जिनसे तुम प्रेम रखते हो उसको तुम फोन करेंगे, बाकी लोगों को फोन कौन करेगा? वो भी तुम्हारे मेरे भाई बहन हैं, तो उनको भी फोन करना, उनके साथ भी ताल्लुक रखना। हाँ, यीशु ने कहा जो तुमसे प्रेम रखते हैं उनसे तुम प्रेम रखेंगे तो उसमें कौन सी बड़ाई है? लेकिन जो तुम्हारे साथ तुमसे डरते या तुमसे दूर रहते हैं, उनकी योग्यता नहीं, वो करीब है, उनको भी फोन करना सीखना चाहिए। हालेलुया। सो ये मैं देख रहा हूँ 3 महीने में बहुत सारे लोग जो पहले थे वैसे ही अब भी हैं, तो ये हमारे लिए दुख की बात है। हमें परमेश्वर ने बदलाव के लिए समय दिया है, परिवर्तन का समय दिया है। शताब्द करके प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखे, ताल्लुकात रखे, इसलिए प्रभु ने हमें ये समय दिया है। इसलिए अपने अपने घर में सुरक्षित जरूर हो सकते हैं, लेकिन जरा दूसरों की सुरक्षा देखो, दूसरों के दुख में शामिल हो जाओ। ओके, सो ये आपके लिए थोड़ी ताड़ना थी, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आज भी बहुत सारे लोग वही है, कोई बदलाव नहीं है, पहले जैसे थे वही है, कोई फर्क नहीं है। अभी कई लोग इस प्रार्थना में जुड़े भी नहीं है। साथियों कहाँ है? साथियों के लोगों, आपसे कहता हूँ हमारे भाई बहन कहाँ है? उनके घर में मैं तो जा नहीं सकता हूँ, आपको मिलेंगे तो बोल देना कि बाबा तुम प्रार्थना में ज्वाइन नहीं हो सकते होते हैं, क्या हुआ आपको, कहाँ है आप लोग? हाँ, तो उनको उनसे मिलो और पास्टर मेरा संदेश उनको पहुंचाओ, पास्टर ने क्या बोला आज। ओके, पास्टर ने क्या बोला? हाँ, ओके, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सुनो मेरी बात, अंतिम वचन पढ़ता हूं। जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को अलग अलग कर देता है, वैसे वो भी एक दूसरे से अलग करेगा। वो अपनी दाहिनी ओर की बकरियों और भेड़ बकरियों को और बाईं ओर को खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ
जो जगत के आदि से तुम्हारे तैयार किया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुरी ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और घर में ठहराया, या नंगा देखा या कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उत्तर देगा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। हालेलुया। हाँ, अच्छे समय में सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इन बुरे समय में अपने आप को छिपा कर मत रखना। भले आप सुरक्षित हैं, ओके, लेकिन आप दूसरों की सुरक्षा देखना। आप आनंद में, खुशी में हैं, दूसरों के दुख में जरा थोड़ा झांक कर देखना कि वो क्या कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है। मेरे भाइयों बहनों, ये समय की जरूरत है। अगर आप समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से एक संदेश है। आप एक दूसरे की भलाई को देखना और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना, एक दूसरे से फोन करके चौकसी करना। इसमें कोई ज्यादा फर्क पैसा नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री रहता है 1 महीने का जो तुम्हारा पैकेज रहता है मोबाइल का, वो फ्री 1 महीने का रहता है। तुम कितना भी फोन करो, अनलिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी लोग फोन करने के, मुझे पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो फोन कभी नहीं करते। एक दूसरे को फोन करो, भले मुझे नहीं किया चलेगा, अपने भाइयों को तो करो, बहनों को तो करो, परिवारों को फोन करो और जाओ, मिलो उनसे, फोन पर मिलो, बात करो, तो वो तुम्हें आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने पेट हम लोग पेट उठाएंगे और प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस समय तेरे लोग तेरे भंडार में भेंट उठाएंगे और उनकी भेंट उठाने को तू आशीषित करना। जितने भी भाई बहन काम करते हैं, जिनकी नौकरी शुरू हो गई है, उनको तू आशीषित करना, उनकी जरूरत परमेश्वर उन्हें उनकी पूरी तनख्वाह मिलने के लिए सहायता करना मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, जो देते हैं उन्हें तू और भी आशीषों से भर दे, जो नहीं देते हैं उन्हें देने के लिए सिखा मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ इस समय तेरे लोग तेरे भंडार में जो अर्पण करेंगे, उनकी भेंट स्वीकार करना, और जो वचन आज बोया है, वो वचन को जो सुना है प्रभु तेरे लोगों ने, उस वचन ईश्वर और उनकी बढ़ोतरी हो, तेरे नाम की महिमा हो मेरे प्रभु पिता यीशु मसीह। आपका दान आप उठाकर आपके डिब्बे में या आपके थैली में डाल देना, और आप उस आपका दान को या दशमांश को भाई राज के पास पहुंचाना और या विल्सन के पास पहुंचाना, और वे लोग बैंक में डाल देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज की इस प्रार्थना सभा को चलाने के लिए आपने सहायता की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता परमेश्वर सहायता करना और इन लोगों की रक्षा करना। फिर से हम मिलेंगे, तब तक इन लोगों की, इनके परिवारों की रक्षा करना। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, आदर और महिमा सम्मान देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सर्व